Hello. Hello, you can start, sir. Yeah. Introduction you are giving. Dr. Rajesh Utane sir is giving the introduction. Okay. Okay. Good afternoon to all the participants, and good afternoon to our today's speaker, Dr. Mangesh Patil sir. And I am very excited to welcome all the today's participants and today's speaker. So today's topic is Ayurvedic management of bleeding per vaginal disorders, and our today's speaker, Dr. Mangesh Patil. And we have today's expert panelist as Dr. Rajesh Utane sir and Dr. Vishnu Bhavne sir. I request Dr. Rajesh Utane sir to please introduce our today's speaker, Dr. Mangesh Patil sir. Dr. Rajesh Utane sir. Yeah, thank you, Dr. Daga sir. Can you hear me? Yes sir. Yeah. Today's lecture on the Ayurvedic management on PB disorder. And now today's speaker is well-known personality in academic as well in clinical obstetrics. This is Dr. Mangesh Patil. He is an associate professor at GD Pod Foundation, YMT Ayurvedic College. He did MD in obstetrics and gynecology. He was bright in academics. He got a prestigious Sandon Dhanvantari Award and Arogyam Dhanasampada Award. He's organized many workshops on Garbhasanskar and Uttar Basti. He's a PhD guide and also a PG guide. I request today's speaker, Dr. Mangesh Patil sir. Please share your experience here. We are very happy to share your here to all your obstetrics and gynecology and PV disorders. Please, Dr. Mangesh Patil sir. Thank you, sir, for your kind words. Can I share my PPT? Yeah. Yes sir, please. Is it visible? My PPT is visible, sir? Yeah. Thank you very much, and welcome all my dear students and colleagues, and again welcome to the seniors and my teachers for today's session on bleeding disorders, Ayurvedic management of bleeding disorders per vagina. So one must know what is bleeding per vaginum, and according to Ayurveda, you should know the physiology also. So in physiological conditions, we must know what is bleeding per vaginum or normal bleeding per vaginum, that we can say menstrual bleeding. So menstrual bleeding is considered as arthav according to Ayurveda, and that arthav, the definition of arthav is mathinupachita kale dhamanibhyam tadarthavam. So every month woman bleeds for 3 to 7 days. That is the normal time according to Ayurveda, that it should be around 3 days to 7 days. And every month there is bleeding per vaginum that creates the Rutukala, which is beneficial for the pregnancy. And regarding Shuddha Arthav, the Arthav should be Gunjapalam Savarnam Cha Padmalaktaka Sannimam Indrakopam Sankasham Arthavam Shuddhi Madishit. That means the menstrual blood should be red in color, like Gunjaphala or red lotus flower or Indragopa. So other than this color, there might be underlying pathology like brownish color or blackish color discharge per vagina. Again, there are some quotations in Ayurveda. Ashtanga Hridaya says, Masi Masi Rajasrinam Rasajam Stravati Trayam. Here the word Rasajam means the Raja, which is considered as Artava or menstrual blood, is derived from the Rasadhatu. That is byproduct of a
Rasadhatu, and it secretes from vagina for 3 days. And according to Harith, there is bleeding for 7 days every month. And that is called as Rajasrav Kal. And in Rutu Chakra, there is one Rajasrav Kal, then uh, Rutukala and Rutuvatita Kala. So Rutukala is followed by the Rajasrav Kal, which is for the, what we say is the high risk period for pregnancy. So in Rutukal there is Shuddha Yoni, Shuddha Garbhashay and Shuddha Bija. And that's why Rutukal is beneficial for achieving pregnancy. And according to Charaka, that Rajasrav Kal is for 5 days. So we have 3 references. One is from Ashtanga Sangra, Ashtanga Hruday, that is Rutukal for 3 days. Harita says it is for 7 days, and Charak says it is for 5 days. So it is for 3 to 7 days, and mean is 5 days. And what is normal bleeding per vaginum for menstrual period is, according to Ayurveda, it is approximately Chaturanjali Pramana, that is approximately 80 ml. And we should know what is heavy menses or what is severe bleeding per vaginum is. So that's why, according to allopathy also, if the bleeding is more than 80 ml or if bleeds more than 7 days, then it is called as heavy menses or severe menses. And to correct this bleeding and to have a normal progeny and normal normal life cycle, one must follow the Rajaswala Paricharya. So for today's topic is bleeding per vaginum, and every bleeding should be seen for 3 ways, that is local, focal, and general. What do you mean by local? There might be some local trauma or local injury or local pathological conditions which can create a bleeding. So there might be some vulval irritation, vulval itching, and that causes laceration from the vulva. There might be vaginal injuries. There might be some cervical pathologies which creates bleeding per vaginum. There might be cervical bleeding also. So it is called as local bleeding. Then what is focal? Focal means related to that particular system. Like in that focal bleeding, we can consider bleeding from the vagina, bleeding from the cervix, bleeding from the uterus or the uterine cavity, and bleeding from the fallopian tubes. And in general, there might be some pathological conditions in which there will be bleeding per vaginum, like in CA also. In CA, there might be focal bleeding also, or in CA, there might be secondary metastasis or tertiary metastasis, which creates bleeding in some conditions. In generalized conditions, there might be bleeding. According to Ayurveda, Rakta Pitta is one of the disorder where there is Adhoga Rakta. In Adhoga Rakta Pitta, there is bleeding through Yoni and Guda. So what is the differential diagnosis of heavy bleeding per vaginum? One must know what is heavy bleeding. If the normal bleeding per vaginum is for 2 to 7 days, if the patient bleeds for more than 7 days, then you can say it is a heavy bleeding per vaginum or heavy menstrual cycle or heavy menses. So more than 7 days is heavy, 2 to 7 days you can consider it moderate, and less than 2 days you can consider as a mild. So mild or scanty, moderate, and severe. According to the number of pads used, we can also know what is the condition of the patient, whether she is having heavy menses or not. So one patient using pad for more than 5 pads per day, then it will be considered as heavy menses. There is some trickiness, like patient in the upper class, elite class, they used to change the pads frequently for the hygiene purpose, and you will misunderstood whether there is heavy bleeding or not. So whenever you ask the patient about the changing of the pads or number of pads used, you should ask the patient in history taking whether that pads are completely soaked or not. So completely soaked pads more than 5 per day is considered to be heavy menses. So more than 7 days, if there is bleeding, then it will be heavy menses or heavy bleeding per vaginum, or more than 5 pads completely soaked per day can be considered as a heavy bleeding. And there are some differential diagnoses according to the heavy bleeding per vaginum, so that we can treat the patient accordingly. One of the bleeding is
polymenorrhea, that is differential diagnosis. Polymenorrhea means increase in the frequency of the menstruation. Like the normal period of menstruation, normal cycle is of 28 days plus or minus 7 days. So one who bleeds in around less than 21 days is considered to be polymenorrhea. अगर पेशेंट को 21 डेज के पहले ही मेंसेस आते हैं, 1 तारीख को मेंसेस आया था, फिर 20 तारीख को 20 तारीख को फिर से मेंसेस आया, then it will be polymenorrhea, that is frequent menses. Then there will be menorrhagia, metorrhagia or menometorrhagia and DUB. And there are some classifications to which we have to see or which we have to follow, and that is divided into two: structural imaging and histology, or both, and unrelated to structural abnormalities. So structural imaging or structural abnormality is polyp, that is palm, polyp, adenomyosis, leiomyoma, and malignancy or hyperplasia. Polyp might be vaginal polyp, endocervical polyp, or the cervical polyp, or endometrial polyp. So endometrial polyp bleeds, endocervical polyp bleeds, cervical polyp bleeds. So there might be bleeding from the polyp. And then adenomyosis, which can cause bleeding per vaginum during the menses, heavy bleeding per vaginum during the menses. And then leiomyoma, that is, we can consider fibroid. And malignancy and hyperplasia, malignancy of the cervix, malignancy of the endometrial tissues, malignancy of the uterus. So in the malignancy or hyperplasia of the endometrium, there will be bleeding. And unrelated to the structural pathology, that is coagulopathy, ovulatory disorders, endometrium, and iatrogenic cause, and some causes are not classified. So there might be polyp. You can say in the picture there might be polyp or the leiomyoma or the adenomyosis or the malignancy, and non-structural cause again coagulopathy, ovulatory, endometrial, iatrogenic, and not otherwise classified causes. So we will see in the detail. So polyps, again I said, like that might be endometrial polyp and endocervical polyp. In adenomyosis, there will be painful and heavy bleeding around 30s and into the 40s, around 30 to 40 years. Then leiomyoma is increase in the size in pregnancy with occipits also, or with occipits also, because most of the leiomyomas are estrogen dependent. So there might be, and this increase in size in pregnancy is because of the in pregnancy there is stretchability, or the stretching of the uterus is there, which causes stretching of the fibroid, and that seems to be increase in the size, but it is not increase in the size, but the dimension is increases. Then malignancy and hyperplasia is considered in all peripheral or postmenopausal women. And Excuse in me. coagulopathy, yes sir. Sir, your voice is coming little slow. It's very Okay. low. Okay. I will. Yeah. Please. Yeah. Then coagulopathy is undiagnosed coagulopathy in adolescence, or it might be acquired. Ovulatory dysfunction, yes, in adolescence age, in perimenopausal also, in PCOS, in hypothyroidism, in anorexia, and in athletes especially because they used to have OC pills. And endometrial causes, diagnosis of exclusion, because you have to exclude the diagnosis whether it is CA or not, whether it is endometrial hyperplasia or not, and then not otherwise specified causes. So we can say in the palm, that is polyp, adenomyosis, leiomyoma, and malignancy, it is common in perimenopausal women. Coagulopathy is maybe in adolescent women with heavy menses, and ovulatory dysfunction in all the ages like adolescent age, reproductive age, and perimenopausal age. So you can commonly differentiate this heavy bleeding per vaginum in this chart, that is around 13 to 18 years, that is pubertal age, anovulatory cycles, OC pills, pelvic infections, coagulopathy, tumors, and other causes. And around 19 to 39 age, there might be bleeding due to pregnancy or bleeding in pregnancy, that antepartum hemorrhage, postpartum hemorrhage, like that. And structural lesions like leiomyoma or polyp, anovulatory cycles in PCOS, OC pills, endometrial hyperplasia, and endo-CA. And in menopausal period,
Bleeding might be because of anovulatory bleeding, endometrial hyperplasia, and endometrial CA, endometrium atrophy, and leiomyomas. So what is menorrhagia? I will go fast through that because we have to discuss according to Ayurveda also. So what is menorrhagia? Menorrhagia is defined as a cyclical bleeding at normal intervals. मतलब अगर किसी लेडी का पीरियड्स जो है वो 30 डेज में आ रहे हैं या 28 डेज में आ रहे हैं, देन ब्लीडिंग विल बी एट द नॉर्मल इंटरवल्स, बट bleeding will be excess in amount and excess in duration also. Bleeding might be more than 80 ml or more than 7 days, then it is called as menorrhagia. The term menotaxis is often used to denote prolonged bleeding. कभी कभी ऐसे हो जाता है कि 8 दिन तक 10 दिन तक 12 दिन तक 15 दिन तक ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहता है, तो उसको हम लोग मेनोटैक्सिस कहते हैं. नॉर्मल ब्लड लॉस इज 50 to 80 ml and it should not be exceed more than 100 ml. Causes of menorrhagia is it is a symptom of some underlying pathological conditions like fibroid uterus or adenomyosis, pelvic endometriosis. अगर fibroid uterus है, adenomyosis है, pelvic endometriosis है, then there will be severe bleeding more than 7 days or more than 80 ml. Along with there will be severe pain in endometriosis also, in adenomyosis also, and in fibroid uterus also. And other causes are IUCD in uterus, like कभी कभी पेशेंट्स हम लोग को बताते हैं कि कॉपर टी बिठाने के बाद ब्लीडिंग ज्यादा हो गया इसलिए कॉपर टी निकालना पड़ा. सो दैट मीन देयर माइट बी एलर्जिक रिएक्शन टू द इंट्रायूटेराइन कॉपर टी इंट्रायूटेराइन contraceptive devices. Then chronic tuberculous mass can cause heavy bleeding like menorrhagia. Then tubercular endometritis, retroverted uterus is one of the cause, लेकिन इसके chances काफी कम होते हैं. It is due to congestion only and granulosa cell tumors of the ovary. So causes of menorrhagia according to endocrinal, hypothyroidism में आपको दिखेगा, hyperthyroidism में भी दिखेगा. हेमेटोलॉजिकल कंडीशंस अगर हम लोग देखेंगे तो आईटीपी में ज्यादा करके आएगा, ल्यूकेमिया एंड प्लेटलेट डेफिशिएंसी. आईटीपी में कॉमनली आता है ये कि ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रहा है. देन सिस्टेमिक में अगर हम लोग देखेंगे लिवर डिसफंक्शन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बिकॉज ऑफ द कंजेशन एंड देन सीवियर हाइपरटेंशन. Diagnosis of menorrhagia is accordingly low duration of flow, passage of big clots, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होता है और काफ़ी बार जो एंजाइम्स फैक्टर्स है वो फैक्टर्स कम होते हैं, उसके वजह से देयर विल बी बिग क्लॉट्स एंड विच कॉजेस सीवियर पेन ऑल्सो. use of increased number of thick sanitary pads that in history you have to ask, and you can see pallor in this patient and low level of hemoglobin because of the continuous bleeding or high magnitude of the bleeding. That is menorrhagia. Then now we will see metrorrhagia. What is metrorrhagia? So metrorrhagia is defined as a irregular. Yes, sir, your voice is coming very low. Yeah, I am talking. I don't know. Maybe your speaker, your mic is little bit away from you, or no. Hello. Now I am audible. Yeah, it's quite better. It is quite good. Yes, sir, quite good. Okay, no issue then. Metrorrhagia is defined as irregular acyclic bleeding, and menorrhagia is a regular cyclic bleeding. So there is difference in menorrhagia and metrorrhagia. Metrorrhagia is irregular and acyclic bleeding. So it also includes the irregular bleeding or intramenstrual bleeding in normal cycle. So there might be intramenstrual bleeding like पीरियड्स आ गए थे, 5 तारीख को खत्म हो गए, उसके बाद फिर से 10 तारीख को 15 तारीख को ब्लीडिंग शुरू हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज मेट्रोरेजिया. मेट्रोरेजिया में 1 तारीख को पीरियड्स आए थे, कंटिन्यूअस चल रहे 15 तारीख तक, तो हम लोग कहेंगे उसको मेनोरेजिया. एंड देयर इज अनदर टर्म व्हिच कंबाइंस मेनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया इज मेनोमेट्रोरेजिया. उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग जो शुरू हो रहा है, साइक्लिकल ब्लीडिंग शुरू होता है और वो कंटिन्यूअसली रहता है, एंड देयर इज एक छोटा सा पैच आ जाता है 5 से 10 दिन का जिसमें ब्लीडिंग नहीं है, और फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है जो कि इरेगुलर है. तो उसमें पता नहीं चलता है कि ये नॉर्मल ब्लीडिंग है या मेंस्ट्रुअल बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है या कंटिन्यूअस है. तो देयर विल बी कंटिन्यूअस ब्लीडिंग विद स्मॉल गैप्स, दैट इज कॉल्ड एज मेनोमेट्रोरेजिया. देन अगेन कॉजेज ऑफ मेट्रोरेजिया इज सीए सर्विक्स, सर्वाइकल म्यूकस पॉलिप. उसके वजह से देयर विल बी इरेगुलर ब्लीडिंग होगा. डेक्यूबिटस अल्सर रहेगा. देन अगर डेक्यूबिटस अल्सर है
यूरेथ्रल कैरंकुला है और ओवुलर ब्लीडिंग है. ओवुलर ब्लीडिंग अराउंड 14 डे to 16 डे ऑफ द मेंसेस there will be intermenstrual bleeding with pain. तो ये intermenstrual bleeding is might be because of IUCD. If it is because of ovulation, then it will be persist for 1 or 2 days only. And decubitus ulcer में you will have history of coitus, and after that coitus there will be bleeding. Same with the urethral caruncle. So there is a metrorrhagia, and now everybody diagnosed that DUB क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग लिख देते हैं कि DUB, that is dysfunctional uterine bleeding. And dysfunctional uterine bleeding जो है, it is without any clinical detectable organic, systemic and iatrogenic causes. जिसमें हम लोग को bleeding क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है. Whether it is because of leiomyoma or endometrial CA or endometritis, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, then we can call it as DUB, a state of abnormal uterine bleeding following anovulation, especially following anovulation, and it might be due to dysfunction of the hypothalamo pituitary ovarian axis. और ये जो है DUB, it affects around 10% of the female, and the sign and symptoms is heavy menstrual bleeding which interferes with the woman's physical, emotional, social and maternal quality of life. So again we will tell you what is menorrhagia. Menorrhagia is cyclical bleeding. What is hypomenorrhea? That is periods with unusually light flow, that there is scanty bleeding. Then what is metrorrhagia? Metrorrhagia is irregular bleeding. Menometrorrhagia is irregular cyclic bleeding which can be persist for a longer period and in mid-cycle also, that is called as menometrorrhagia. And polymenorrhea, that is frequent menses. Menses occurs in less than 21 days. So that is the cause of heavy bleeding. Then what is the pathology or pathophysiology? Menstrual bleeding either ovulatory or non-ovulatory. अभी ये ovulatory bleeding है या anovulatory bleeding है, ये हम लोग को कैसे समझेगा? तो we will have indicators like if the bleeding is regular and painful, then there might be ovulatory bleeding. As we know that there are 3 phases: menstrual phase, follicular phase and luteal phase. So luteal phase is always constant. Luteal phase जो है ओवुलेशन के बाद 14 डेज के लिए कॉन्स्टेंटली रहेगा, कोई भी साइकिल में 14 डेज का ही रहेगा. फॉलिकुलर फेज एक साइकिल में 10 डेज का हो सकता है, सेकेंड साइकिल में 12 डेज का हो सकता है, 14 डेज का भी हो सकता है. सो इफ ब्लीडिंग इज रेगुलर एंड इट इज पेनफुल, देन इट माइट बी ovulatory. Ovulatory bleeding will always painful. If the bleeding is irregular and painless, then it will be anovulatory bleeding. With menorrhagia there is evidence of elevated levels of prostaglandins. और इसीलिए हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हम लोग को देने होते हैं, राइट. सो इन्वेस्टिगेशन अगेन, अगर ब्लीडिंग ज्यादा होता है देन देयर विल बी पैलर, सो देयर विल बी hemoglobin loss or blood, because of your blood loss there will be decrease in the hemoglobin. So we have to investigate accordingly, especially blood values, then ultrasound and color Doppler, serum T3, T4, TSH. अल्ट्रासाउंड में भी हम लोग कलर डॉपलर जब करते हैं तो कलर डॉपलर स्पेसिफिकली फॉर द एंडोमेट्रियम का साइज देखने के लिए एंड एंडोमेट्रियम का जो पैरेन्काइमा है उस देखने के लिए हम लोग को कलर डॉपलर करवाना जरूरी होता है. वेदर एंडोमेट्रियम में अगर हाइपरप्लेशिया है तो ये क्यों हो रहा है हाइपरप्लेशिया, वेदर देयर इज इंक्रीज फ्लो, तो वो देखने के लिए हम लोग को कलर डॉपलर करना होता है. देन ट्रांसवाजाइनल स्कैन इज आल्सो वेरी सेंसिटिव टू डिटेक्ट एनी एब्नॉर्मेलिटी. लाइक टीवीएस स्कैन में हम लोग को स्पेसिफिकली अगर टीओ मास है, ट्यूबो ओवेरियन मास है, तो वो डिटेक्ट होने के लिए, डर्मोइड सिस्ट है तो वो डिटेक्ट करने के लिए टीवीएस स्कैन इज वेरी यूजफुल. देन सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी जो कोई करता नहीं है फिलहाल, तो हिस्टोस्कोपी इज इम्पोर्टेंट इन लॉन्ग टाइम. अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेनोरेशिया और मेट्रोरेशिया सिंस लॉन्ग टाइम, देन यू हैव टू गो फॉर हिस्टोस्कोपी एंड एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग विद एंडोमेट्रियल बायोप्सी एंड लैप्रोस्कोपी and DNC, that is dilatation and curettage. So we switch to now Ayurvedic part, the conditions of योनिगत अत्यधिक रजस्राव. जैसे मैंने कहा कि रजस्राव, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रजस्राव कहेंगे, या जो योनि से ब्लड निकलता है उसको रजस्राव कहते हैं. तो आयुर्वेद के हिसाब से कौन से डिसऑर्डर्स है, हम लोग ने एलोपैथी में सिर्फ 4-5 डिसऑर्डर्स देखे थे,
4-5 कंडीशंस देखे थे जिसमें अलग अलग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो वैसे ही आयुर्वेद में भी उन्होंने आर्तवृद्धि दिया हुआ है, अलग अलग योनि व्यापक दिए हुए हैं। तो उसमें हम लोग कंसिडर करके अकॉर्डिंग टू दैट कौन से दोष और कौन सी दुष्टि है, कहाँ पे दुष्टि हुई है, उसकी हम लोग अगर पैथोलॉजी समझ सकेंगे तो उसका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। जैसे हमेशा की तरह ये एक चीज होती है कि अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो वो पित्त की वजह से हो रहा है, ऐसे हम लोग समझते हैं। तो पित्तवर्धक, पित्त शामक पदार्थ कब देने हैं, पित्त शामक चिकित्सा कब करनी है, पित्त का शोधन कब करना है या नहीं करना है, ये हम लोग को समझना चाहिए। तो देयर आर डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर अत्यधिक योनिगत रजस्राव, दैट इज आर्तवृद्धि, अश्रुजा योनिव्यापक, रक्तज रजोदृष्टि, पित्तज योनिव्यापक, अधोघ रक्तपित्त, रक्त अर्बुद, योनि अर्श, रक्तगुल्म, गर्भस्राव एंड गर्भपात। अगेन आर्तवृद्धि जो कि हम लोग देख सकते हैं मेनोरेजिया जैसे कंडीशंस में, रक्तज रजोदृष्टि अगर है, देन अगेन इन द मेनोरेजिया कंडीशंस, पित्तज योनिव्यापक, अधोघ रक्तपित्त कैन बी कंसिडर्ड एज मेनोमेट्रोरेजिया और मेट्रोरेजिया, रक्त अर्बुद कैन बी कंसिडर्ड एज मेट्रोरेजिया, Yoni Arsha, you all know that is polyps, uterine polyps or endocervical polyp or endometrial polyp, and then there will be bleeding during abortions. So what is आर्तवृद्धि? आर्तवृद्धि के 3 लक्षण दिए हुए हैं, आर्तवम अंगमर्दम अति प्रवृत्तिम दुर्गंधम च। जब पेशेंट को हेवी ब्लीडिंग हो रहा है along with the weakness and पेन, पूरे बॉडी में पेन है ऐसे पेशेंट बताती है, तब आर्तवम जिसमें अंगमर्द है, अति प्रवृत्ति है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है और उस ब्लीडिंग को स्मेल आ रहा है, पिक्यूलियर ओडर है या प्यूरुलेंट डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे आर्तवृत्ति। दूसरा दिया हुआ है अश्रुजा योनिव्यापक, इसमें कहा गया है कि जो पित्तल प्रकृति की स्त्री है वह अगर रक्त पित्तकर पदार्थ का सेवन ज्यादा करे, उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक पदार्थ का सेवन ज्यादा करे, तो उससे क्या होगा, उससे रक्त की प्रमाणता वृद्धि होगी, रक्त दूषित हो जाएगा पित्त की वजह से, और योनि मार्ग से इतना निकलेगा कि अगर गर्भ भी है तो देयर विल बी अर्ली एबॉर्शंस, ऐसे कहा गया है। रक्त रजोदृष्टि में वहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो उणपगंधी स्मेल, दैट इज प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा एंड फाउल स्मेलिंग होगा वहां पे। तो फाउल स्मेलिंग अगर है तो हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं रक्त रजोदृष्टि। अगेन पित्तज योनिव्यापक, परिप्लुता योनिव्यापक, पित्तज योनिव्यापक में अब उन्होंने दिया हुआ है कि अगर कटु, अम्ल, लवण रस का अत्यधिक सेवन करेंगे, क्षार का सेवन करेंगे, और स्पेसिफिकली अगर पित्तज प्रकृति की स्त्री ये सेवन करेगी, देन देयर विल बी हेवी फ्लो विद दाह, पाक एंड फीवर, ज्वर। और जब फ्लो होगा, काफी सारे पेशेंट्स बताते हैं कि जब फ्लो होता है तब वहां पे बर्निंग सेंसेशन होता है, उष्ण आर्तव, एंड उसमें कलर डिफरेंस थोड़ा सा दिया है जो कि नील पीत असित आर्तव कहाँ है, तो ऐसे हम लोग को दिखाई देगा। परिप्लुता योनिव्यापक ये जो है स्पेशली वहां पे भी ब्लीडिंग दिखाई देता है, लेकिन इट इज क्वाइट विद द डिस्पेरोनिया, इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होगा। साथ में जब उसमें हिस्ट्री आएगा कि जब कॉइटस करते हैं तब पेनफुल कॉइटस होता है एंड ब्लीडिंग होता है, उसमें लो बैक एक ज्यादा रहेगा, बैक एक रहेगा एंड फीवरिश सेंसेशन रहेगा। Then रक्तार्बुद, one all know that is it might be it will be considered with the CA endometrium or CA genital tract, उसमें कहीं भी CA होगा तो it is considered as रक्तार्बुद, along with malignant fibroid you can say, और रक्तगुल्मा is a different thing that is called as pseudocyesis or phantom pregnancy। योनि अर्श, चरक ने भी कहा है और सुश्रुत ने भी कहा है कि अगर योनि अर्श होगा तो वहां पे ब्लीडिंग जो है वो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है एंड मेंसेस के समय में भी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। एंड योनि अर्श कैन बी कंसिडर्ड एज अ एंडोमेट्रियल पॉलिप, जब एंडोमेट्रियम का थिकनेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिप, सो देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लीडिंग सरफेस, एंड ब्लीडिंग सरफेस इज ओनली एंडोमेट्रियम, दैट इज यूट्राइन कैविटी में अगर कोई ब्लीडिंग सरफेस है दैट इज एंडोमेट्रियम। और इसी की वजह से अगर फाइब्रॉइड है जो कि इंटरनल कैविटी की तरफ फाइब्रॉइड रहेगा, then there will be excessive bleeding. अगर पॉलिप है there will be excessive bleeding because of the increase in the bleeding surface. And again गर्भस्राव and गर्भपात। एक बड़ा टॉपिक जब हम लोग यूजी में थे या पीजी कर रहे थे, तो अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम लोग ये सोचते नहीं थे कि पित्तज योनिव्यापक होगा या और कोई योनिव्यापक होगा, अश्रुजा योनिव्यापक होगा। हम लोग डायरेक्टली डायग्नोस कर देते कि अश्रुदर
और काफी सारे लोग तो अश्रुधर का लिख के ही पास हो गए। तो व्हाट इज अश्रुधर? अश्रुधर इज स्पेसिफिकली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर ये प्रदर है तो व्हाट इज प्रदर? प्रदर इज प्रकर्षेण दीर्यते। क्या दीर्यते? तो रज प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्तेन सस्मृतम्। इसमें रज का प्रदीरण, अभी प्रदीरण मतलब क्या होता है? तो प्रदीरण इज एक्सेसिव ब्लीडिंग इन अ शॉर्ट स्पैन। जैसे कोई थैली पानी का भर के रखा है होता है, वो पानी का थैली आप फाड़ दो तो सडनली देयर विल बी गश ऑफ फ्लूइड और पानी का थैली वो पूरा खाली हो जाएगा। वैसे ही ब्लीडिंग जहाँ पे होता है उसको ही हम लोग प्रदर कह सकते हैं, बिकॉज इट इज वैसे ब्लीडिंग होना। सो देयर विल बी गश ऑफ फ्लूइड। अगर हम लोग को ये देखना है तो यू मस्ट नो कि रक्त प्रदर डायग्नोस करने तो पेशेंट कम से कम आके बताते हैं आपको कि जब हम लोग खड़े होते हैं तो देयर विल बी सडनली ब्लीडिंग और मेरे को 5-10 मिनट में 3-3 पैड 4-4 पैड बदलने पड़ते हैं। सो दैट इज रक्त प्रदर। और रक्त प्रदर में भी अगेन देयर विल बी बिकॉज ऑफ द पित्त डिसऑर्डर। इट इज अ पित्त डिसऑर्डर। तो पित्त की वजह से और वात की वजह से यहाँ पे रक्त प्रदर उत्पन्न होता है। और अगर हम लोग, मैं डायरेक्टली जाऊंगा इसके कॉजेस क्या है। सो कॉजेस आर लवण, अम्ल, गुरु पदार्थों का सेवन करना, कटु पदार्थ का सेवन करना, विदाही पदार्थ का सेवन करना, उसके साथ में स्निग्ध, टीशित यानी मांस, इनका सेवन करने की वजह से रक्तम प्रमाणम उत्क्रम्यम गर्भाशया गताशिरा, रक्त की जो है प्रमाणता वृद्धि होती है, क्योंकि इनका सेवन करने की वजह से वात का प्रकोप होता है। विपरीत चेष्टा करने की वजह से वात का प्रकोप, और ये सब चीजों के पदार्थों के सेवन करने की वजह से पित्त का प्रकोप। और ये पित्त का प्रकोप जब हो रहा है तब वहां पे पित्त के जो गुण है उसमें से स्पेसिफिकली पित्त का द्रव गुण है, पित्तम सस्य तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, तो उसका द्रव जो गुण है वो द्रव गुण बढ़ जाएगा। दैट मीन्स उसकी प्रमाणता वृद्धि होगी। पित्त का द्रव गुण हो गया, बढ़ गया है। पित्त जो है वो रक्तानुगामी है, तो रक्त का द्रव गुण बढ़ जाएगा और वह जो द्रव है वो गर्भाशयगत शिराओं में आके वहां से सडनली एक साथ में बाहर निकाला जाएगा। अगर पित्त का उष्ण गुण बढ़ता है तो वो पूरा द्रव गुण का शोषण करेगा, उसके वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी। तो पित्त के वजह से अरजस का अनिरपत यानी ब्लीडिंग बिल्कुल भी ना होना ये भी होता है, और उसी पित्त की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होना ये भी होता है। अगर उष्ण गुण बढ़ गया, पित्त का उष्ण गुण अगर बढ़ गया है तो वहां पे ब्लीडिंग नहीं होगी, अरजस का अनिरपत होगा। पित्त का द्रव गुण बढ़ गया है तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, जैसे मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया रक्त प्रदर में होता है। और इसीलिए चिकित्सा में उन्होंने कहा है कि पित्त की चिकित्सा करते समय, रक्त प्रदर की चिकित्सा करते समय जब हम लोग आर्तवृद्धि के लिए दवाई देते हैं तो विधिवत उपयोग करना चाहिए, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। देन हारित और बेल ने होता है प्रदर। बेल कहते हैं कि यदा तु तत् शोणितम दुष्ट मार्गम प्रतिपाद्य। शोणित के दुष्ट होने से यानी रक्त धातु के दूषित होने की वजह से वहां पे स्त्रियों में प्रदर उत्पन्न होता है। लेकिन ये शोणित दुष्टि की होती है, शोणित दुष्टि दुष्ट पित्त की वजह से होती है, आश्रय आश्रय संबंध की वजह से उत्पन्न होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रक्त प्रदर का निदान या डायग्नोस करना इट इज नॉट इजी। हेलो मंगेश सर। होता नहीं सर, वॉइस नहीं येत आहे। हेलो
Hello, Dr. Utane sir. Dr. Utane sir. Dr. Abhijit Raut, please unmute from yourself. Dr. Abhijit Raut. Hello, can you hear Dr. Raut? Yes. Just remain unmuted. Dr. Utane sir. Hello, Dr. Rajesh Utane sir. Yes, Dr. Patil sir. Hello. Yes sir. Yeah, am I audible? Yeah, audible. Yeah, sorry But, for sir, sorry voice for the is- network issue. No issue, sir. Just your voice is coming very low, sir. Don't know why it is low. I mean, quite small disturbance are in your voice and very low. Now I am audible. Yeah, it's a little better, but okay, no issues. Let me check. Hello. Hello? Yeah, am I audible? No voice. No voice. No, very small voice. Okay, I will try to speak loudly. Yeah. You take your Miss mic a little closer. Maybe if you directly you can speak on your laptop directly. Yeah, I'm speaking directly on the laptop. So I will resume with the Rakta Pradar Nidan. So yeah, according to Charak and Sushruta and Kashyapa, Rakta Pradar is considered as Shonitach Vyadhi, and there are 4 types of Rakta Pradar is there. That is Vatach, Pittach, Kafach, and Sannipatik. So Charak also described the treatment of Pitta Vatach Astrugdara. So there will be, according to Charaka, it is of 5 types, but चरक ने 4 जो प्रकार है उसको बताया हुआ है, लेकिन चिकित्सा में उन्होंने 5वां प्रकार बताया पित्तवाचक चिकित्सा बताते समय. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो माधव निदानकार, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने कहा है कि अगर हम लोग देखते हैं तो रक्त प्रदर जो है वैधि वो हम लोग पित्तज समझते हैं, तो ये पित्तज तो है ही है, लेकिन श्लेष्मच रक्त प्रदर है उसको अग्र कहा है. तो श्लेष्मच रक्त प्रदर को अग्र कहने में उनका कहना ऐसा है कि श्लेष्मच रक्त प्रदर में पेन जो है वो पेन ज्यादा होता है, इसके लिए इसको हम लोग को अग्र समझना चाहिए या बड़ा समझना चाहिए. So Charak has described the only symptoms, that is presence of excessive bleeding during menstruation. Sushruta ने कहा है कि there will be prolonged bleeding during menstruation, और ऐसे समझते हैं कि ऋतु अपि अनऋतुवा, यानी ऋतुकाल में भी ब्लीडिंग ज्यादा होना, दैट इज मेनोरेजिया, और ऋतुकाल नहीं होते हुए भी ब्लीडिंग होना, दैट इज मेट्रोरेजिया. तो ऋतु अपि अनऋतुवा ये दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं रक्त प्रदर से. सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगेन कि इसको हम लोग किसी व्याधि को रक्त प्रदर कहना है तो इट शुड बी आशुकारी. एंड अश्रुगदर इज उपद्रव ऑफ योनि व्यापक.
अगर हम लोग देखेंगे, साइंटिफिकली भी देखेंगे, तो चरक संहिता में योनिवेपत चिकित्सा अध्याय में रक्त प्रदर का वर्णन आया हुआ है। और रक्त प्रदर को बताते समय अष्टांग हृदयकार ने कहा है कि जिसमें योनिवेपत काफी दिनों से है, ऐसे स्त्री में बाद में रक्त प्रदर उत्पन्न होता है। और हम लोग अगर व्याधियों का भी क्रम देखेंगे तो तद्यथा ज्वर संतापात रक्तपित्त मुदिरते, तो ज्वर रक्तपित्त ऐसे व्याधि का क्रम दिया है, मतलब ज्वर के कारण रक्तपित्त हुआ है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहले योनिवेपत का वर्णन है और योनिवेपत के बाद रक्त प्रदर का वर्णन है। मतलब ऐसे पेशेंट्स को जिनमें योनिवेपत की पहले से ही हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट्स में अगर वो योनिवेपत को हम लोग इग्नोर करेंगे तो उसके वजह से रक्त प्रदर उत्पन्न हो सकता है या रक्त प्रदर उत्पन्न होता है, और उसके वजह से फिर आगे जाके इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो सकती है इफ पेशेंट इज in that reproductive age. So, Asrugdara is Upadrava of Yonivapat. Asrugdara, Rakta Yoni, Yonivapat and Arthavruddhi are the differential diagnosis which reveals heavy bleeding but having different causes. तो रक्त प्रदर समझने के लिए हम लोग को पहले उसकी संप्रप्ति समझनी चाहिए और उसके कारण समझने चाहिए, अदरवाइज वो रक्त प्रदर नहीं होते हुए फिर दूसरे योनिवेपदों में जो चिकित्सा वर्णन किया, अगर हम लोग वो चिकित्सा यूज करेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा हम लोग को मिलता है। हारित ने कहा है कि अपूर्ण दिवसे नारी ज्वरता पुष्प अपनुयात। अभी यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो जिस नारी में, जिस स्त्री में अपूर्ण दिवस में ही फिर से ज्वर युक्त अगर मेंसेस होता है, जैसे पॉलीमेनोरिया में ज्वर नहीं होता है लेकिन मेंसेस जो है फ्रीक्वेंट होते हैं, लेकिन अगर इसमें किसी नारी में ज्वर युक्त पॉलीमेनोरिया है या अर्ली फ्रीक्वेंट मेंसेस है तो वह असाध्य होती है, जिसमें उसकी जान को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। चरक ने कहा है कि जिस अश्रुदर में शोफ की उत्पत्ति होती है वह नारी जो है, वह रक्त प्रदर जो है वह असाध्य है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। रक्त प्रदर अगर हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर से कंसिडर करते हैं, वेदर इट माइट बी मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और पॉलिप और एडिनोमायोसिस और लियोमायोमा, तो उसकी चिकित्सा करने के लिए अगर हम लोग सोचेंगे, इफ वी थिंक सिम्टोमेटिक, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ भी वी कैन गिव, अदरवाइज यू शुड थिंक ऑफ क्यूरेटिव एस्पेक्ट। अगर आप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करने जाओगे तो वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगी, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ भी देने वाला है। सो चिकित्सा सिद्धांत जैसे आयुर्वेद ने कहा है, उपद्रवेशु योनि नाम प्रदरो यश कीर्तित तेषाम निदानम लिंगम च चिकित्सम चैव तत्वतः। योनि वेपद के वजह से प्रदर की उत्पत्ति होती है और इसीलिए उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, वह देख के उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगर रक्त प्रदर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में दाह ज्यादा है तभी हम लोग को शीत चिकित्सा करनी चाहिए, तभी हम लोग को पैथिक चिकित्सा करनी है। अगर रक्त प्रदर में ब्लीडिंग ज्यादा है, उसके साथ में पेन ज्यादा हो रहा है, तो पहले वात की चिकित्सा करनी चाहिए। आगे बताते हैं चरक की योनि नाम वातलाद्या नाम यदुक्त ये भेषजम। जो जो चिकित्सा बताई गई है योनि वेपद में, वैसे वैसे चिकित्सा हम लोग को करनी चाहिए। चतुर्नाम प्रदराणाम च तत्सर्वम कार्यदिशक, वह चिकित्सा चारों प्रकार के प्रदर में करना चाहिए। और स्पेशली रक्त प्रदर की चिकित्सा ये रक्तातिसारिणाम, मतलब अतिसार में रक्तातिसार की जैसे चिकित्सा बताई है, या शोणित पित्तिना मतलब रक्त पित्त में जो चिकित्सा बताई गई है, या रक्त अर्श में जो चिकित्सा बताई गई है, वैसे ही चिकित्सा रक्त प्रदर में करनी चाहिए। सर्वेषु गर्भस्रावोक्तम प्रदरेषु प्रशस्यते, मतलब गर्भस्राव में जो चिकित्सा बताई गई है वह चिकित्सा भी हम लोग को रक्त प्रदर में करनी चाहिए। तो रक्त प्रदर या वैद्य की चिकित्सा करते समय हम लोग को योनि वेपद की चिकित्सा ध्यान में रखनी चाहिए। रक्तातिसार, रक्तपित्त, रक्त अर्श और गर्भस्राव, ये सब चिकित्सा हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। काश्यप ने सबसे सिंपल बता दिया है कि गर्भाशय अश्रुजी विरेक, अगर गर्भाशय से ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो विरेचन चिकित्सा देनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि पित्त का द्रव गुण बढ़ गया है और पित्त को नजदीक का मार्ग जो है बाहर निकालने का, दैट इज विरेचन ओनली। तो गर्भाशय से नजदीक का मार्ग विरेचन है, पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन है। और रक्त प्रदर में या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में पित्त बढ़ गया है, पित्त का द्रव गुण बढ़ गया है, तो उसको हम लोग को विरेचन चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पे बताया तरुण्या हित सेविन्नाम अस्त अल्पोपद्रवम विषय रक्तपित्त विधानेन यथावत उपाचरित। अगेन रक्त प्रदर में रक्तपित्त की चिकित्सा
करनी चाहिए। और शारंदर ने कहा है कि यहाँ पे निरूह देना चाहिए। निरूह चिकित्सा सबसे अच्छी चिकित्सा बताई गई है। जब हम लोग रक्तपित्त या रक्त प्रदर की चिकित्सा का वर्णन देखते हैं, या रक्तार्श की चिकित्सा का वर्णन देखते हैं, या रक्तातिसार की चिकित्सा का वर्णन देखते हैं, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है तिक्तरस की चिकित्सा। इसका मतलब है कि इस ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे व्याधियों में हम लोग को तिक्तरस देना चाहिए। ये तिक्तरस देने के पीछे एक सबसे महत्व का कारण है, जिसमें ये जो व्याधि है ये उत्पन्न होते समय आम की उत्पत्ति ज्यादा होती है और अग्निमांद्य होता है। तो तिक्तरस का काम है कि जिसके वजह से आम का नाश हो जाए। तिक्तरस जो है वो रस के पांचभौतिक संगठन की वजह से आम का नाश होता है, दोषों की दुष्टि शांत होती है और रक्त का संग्रहण होता है। रक्त संग्रहणाय च दोषाणाम पाचनार्थम च परम तिक्त ही उपाचरित, ऐसा वर्णन आया हुआ है। तो दोषों का पाचन करने के लिए, आम की शांति के लिए, आम का पाचन करने के लिए और रक्त संग्रहण करने के लिए तिक्तरस सर्वश्रेष्ठ है। और ये तिक्तरस में जो भी कोई द्रव्य आपके क्लिनिक में उपलब्ध है वो आप दे सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चिकित्सा है वह है संग्रहण चिकित्सा। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ब्लीडिंग हो रहा है तो स्तंभन देना चाहिए, लेकिन जब ये ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ द आम निर्मिति की वजह से जब ब्लीडिंग है, जैसे रक्तपित्त हुआ, रक्त प्रदर हुआ, या रक्तार्श हुआ, या रक्तातिसार हुआ, वहां पे पहले आम निर्मिति है, तो वहां पे हम लोग को स्तंभन नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्तंभन करते समय सबसे पहले वो हम लोग स्तंभन जो है वो शीत गुणात्मक द्रव्य से करेंगे, तो शीत गुणात्मक द्रव्य की वजह से वहां पे फिर से आम निर्मिति हो सकती है। स्तंभन के लिए हम लोग कषाय द्रव्य यूज करते हैं। कषाय द्रव्य जो है स्पेसिफिकली शीत होते हैं, तो उसकी वजह से फिर से आम निर्मिति होगी, आम निर्मिति की वजह से और ब्लीडिंग होगा। तो ये व्याधियों में तिक्तरस के देने का प्रयोग जो है वो स्पेसिफिकली संग्रहण के लिए है, क्योंकि संग्रह द्रव्य जो होता है वो उष्ण गुणात्मक होते हैं। अभी ये उष्ण गुणात्मक जो है वो पित्त करे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पित्त का द्रव्य ही देते हैं उष्ण गुणात्मक, क्योंकि उष्ण गुण बढ़ने की वजह से जो है पित्त का जो द्रव गुण बढ़ा हुआ है वो द्रव गुण का शोषण कर लेगा, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होगा, राइट। उसके वजह से दोषों का पाचन भी हो जाएगा, आम का पाचन भी हो जाएगा और रक्त का संग्रहण भी हो जाएगा। एक बार ये संग्रहण हो गया, ब्लीडिंग जो है वो कम हो गई, उसका प्रमाण एकदम से कम हो गया या रुक गया, उसके बाद आप स्तंभन चिकित्सा, शीतल द्रव्य की चिकित्सा कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि अगले पीरियड्स में उसको ब्लीडिंग ना हो। लेकिन जब ब्लीडिंग हो रहा है तभी आपको उष्ण द्रव्य की चिकित्सा करनी चाहिए। और साथ में अति प्रवृद्ध दोषस्य पूर्वम लोहित पित्तिनम अक्षीण बाल मांसाग्ने कर्तव्यम अपतर्पणम। अभी यहाँ पे उन्होंने अपतर्पण करने के लिए बोला है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है और तर्पण अगर आप करोगे तो फिर से आम निर्मिति होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए तर्पण नहीं करवाना है, तो अपतर्पण करवाना है। लेकिन अपतर्पण करते समय भी अगर ब्लीडिंग ज्यादा होके पेशेंट क्षीण हो गया है तो वो अपतर्पण करते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि उस अपतर्पण की वजह से पेशेंट की जान को खतरा न हो। तो सबसे सिंपल है कि उसकी तिक्तरसात्मक चिकित्सा की जाए, उष्ण वीर्यों से या ग्राही द्रव्य से चिकित्सा करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे सिंपल ड्रग है जो कि किचन में हमेशा अवेलेबल होता है, दैट इज शुंठी। तो पेशेंट को शुंठी सिद्ध जल पीने के लिए दीजिए आप, या शुंठी चूर्ण खाने के लिए दीजिए, या शुंठी का काढ़ा बना के आप खाने को दीजिए, पीने को दीजिए, तो उससे ब्लीडिंग जो है वह स्टॉप हो जाता है। देन पंचकर्म मैनेजमेंट क्या होती है? अभी मैं जानता हूँ कि इट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप अगर क्लिनिक में हो और आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें पंचकर्म काफी हद तक परेशानी होती है। लेकिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स अगर है और जिसमें पेशेंट काफी जगह पे घूम के आया हुआ है और 3-4 महीने से ब्लीडिंग से कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, जिसमें ओसी पिल्स दिए हुए हैं, हार्मोनल पिल्स दिए हुए हैं, एंड देन दे आस्क पेशेंट टू गो फॉर हिस्टेक्टोमी, तो ऐसे पेशेंट्स में आप थोड़ा सा उत्तर बस्ती जैसे क्लिनिक में अब बस्ती वगैरह थोड़े बहुत मात्रा में कर सकते हो, स्पेशली अनुवासन बस्ती करने में कोई हर्ज नहीं होती। तो बस्ती में स्पेसिफिकली उत्तर बस्ती, इफ यू आर ट्रेन फॉर उत्तर बस्ती, ये स्किलफुल थोड़ा सा प्रोसीजर है, तो उस उत्तर बस्ती से काफी हद तक रिलीफ मिलता है, इमीडिएट रिलीफ मिलता है।
और बस्ती में अगर हम लोग देखेंगे तो कुशादी निरोह बस्ती, चंदनादी निरोह बस्ती, चंदनादी तेल इजीली अवेलेबल है तो उससे हम लोग कर सकते हैं। मुस्तादी राजा यापन बस्ती या यापन बस्ती एंड रासनादी यापन बस्ती। तो यहाँ पे जो द्रव्य देख रहे हैं आप वो उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है, मुस्तादी, लोध्रादी एंड रासना। और वहीं पे कुश और चंदन जो है वो शीत द्रव्यात्मक है। तो जैसे लक्षण आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वैसे हम लोग को उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगेन दूसरा पार्ट है, ये बस्ती हो गया, दूसरा पार्ट है विरेचन। तो विरेचन के लिए हम लोगों को जीपी में भी अगर हम लोग जीपी करें तो पेशेंट को हम लोग विरेचन की मात्रा बता सकते हैं 30 ml से, जो जैसे ऐसी मात्रा हम लोग समझते हैं 30 ml, 60 ml, 90 ml, 120 ml, 150 ml। ये घृतपान अगर पेशेंट को हम लोग करने के लिए देंगे और उसके बाद विरेचन के लिए दवाई देके, जैसे इच्छाभेदी रस है या अरगवत कपिलावटी है, उसके साथ में एरंडस स्नेह पान करने के लिए देंगे और कंटिन्यूअसली उसका फॉलोअप रखेंगे, तो विरेचन के बाद इमीडिएटली आप देखेंगे तो ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाता है। विद इन नेक्स्ट साइकिल पेशेंट विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी। सो विरेचन ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। जो लोग पंचकर्मा ट्रीटमेंट अपने क्लिनिक में करवाते हैं उनके लिए तो मैं कहूंगा, जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, नॉन रिस्पॉन्डिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है पर वजाइनम, तो उनमें विरेचन देना चाहिए। अब यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि जो रक्तपित्त चिकित्सा है उसमें अधोग रक्तपित्त में वमन देने के लिए कहा है और ऊर्ध्वग में विरेचन देने के लिए कहा है कि अलग मार्ग से, उल्टे मार्ग से उसकी चिकित्सा है। लेकिन रक्त प्रदर में स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि रक्त प्रदर में काश्यप का कहना है कि विरेचन देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पित्त बढ़ा हुआ है उस पित्त को नजदीक के मार्ग से बाहर निकलना चाहिए और पित्त की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा जो है विरेचन है। तो जो मेरे अपने क्लिनिक में विरेचन दे सकते हैं या जिनका पंचकर्मा सेंटर है वो स्पेशली ऐसे कंडीशंस में बस्ती का वगैरह न सोचते हुए विरेचन के लिए सबसे पहले जाए। और यही कारण है कि जब मैं लेक्चर्स में बताता हूँ इनफर्टिलिटी के, तो शोधन के समय इनफर्टिलिटी अगर पेशेंट ट्रीट कर रहे हो तो आप विरेचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि विरेचन जो है वो रजक्षय करने वाला है। तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में अनलेस एंड अनटिल इट इज अटमोस्ट ऑफ यूज कि नहीं उसको देना ही चाहिए तभी विरेचन दो। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में विरेचन इज द थंब रूल, तो उसमें विरेचन। और जब भी हम लोग पंचकर्मा करते हैं तो संसर्जन क्रम का ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए। रक्त प्रदर के लिए सबसे बेस्ट चिकित्सा है विरेचन। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज हम लोग पंचकर्मा में देखेंगे, दैट इज नस्य, जिसमें हम लोग नेसल इंस्टॉलेशन करते हैं। और ये नस्य जो आयुर्वेद ने तो बताया हुआ ही है कि नासा ही शीर्षोद्वारम, तो उसके वजह से जो है मज्जारज्जु पे परिणाम होके विरेचन पैथिक डिसऑर्डर्स भी कम होने वाले हैं। वैसे ही अगर हम लोग मॉडर्न में देखेंगे, so that there is the information from research that research on the olfactory system may also be used to derive insight into biological mechanisms, which may eventually help development of the variety of clinical applications. And very commonly gonadotropins are used as a intranasal drops or spray. काफी जगह पे काफी कंसल्टेंट्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में इंट्रानेजल स्प्रे करते हैं। ऑल्फैक्टरी जो रूट है ऑल्फैक्टरी सिस्टम का, इट डायरेक्टली वर्क्स ऑन, ऐसे माना जाता है कि इट डायरेक्टली वर्क्स ऑन द पिट्यूटरी एंड दैट करेक्ट्स द एचपीओ एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, व्हिच इन टर्म्स कंट्रोल द हेवी मेंसेस और द ब्लीडिंग। तो नस्य के लिए हम लोग देखेंगे स्पेशली जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ये कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर्स भी अपने पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें ब्लीडिंग जो हेवी मेंसेस के पेशेंट्स आते हैं या इरेगुलर ब्लीडिंग के पेशेंट्स आते हैं या मिड साइकिल ब्लीडिंग के पेशेंट्स है, ऐसे कंडीशंस में पेशेंट्स को हम लोग कह सकते हैं कि एटलीस्ट घृत का नस्य 2-2 ड्रॉप्स हर नॉस्ट्रिल्स में सुबह शाम डालने चाहिए। या फिर सबसे बेस्ट इज दुर्वा स्वरस नस्य। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में दुर्वा स्वरस नस्य वर्क्स लाइक मैजिक। जैसे रक्त प्रदर में या ब्लीडिंग डिसऑर्डर में विरेचन जैसे काम करता है, वैसे ही दुर्वा स्वरस नस्य का काफी अच्छा काम है। हम लोगों ने काफी सारे पेशेंट्स पे काम किया हुआ है, जिसमें दुर्वा स्वरस नस्य जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए काम आता है। जैसे हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में भी करते हैं, एपिस्टैक्सिस हो गया तो उसमें नेजल इंस्टिलेशन, शक्कर का पानी का हम लोग नेजल इंस्टिलेशन करते हैं या घृत डालने को बोलते हैं, वैसे ही घृत का परिमर्शन नस्य भी कर सकते हैं। और दुर्वा स्वरस नस्य इज द ड्रग ऑफ चॉइस
इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और हेवी मेंसेस और रक्त प्रदर्शन। एंड देन रक्तस्तापन औषधि जो बताई गई है वो रक्तस्तापन औषधि हम लोग को यूज में आनी चाहिए। जैसे हम लोग नस्य करते हैं तो वहां पे भी नस्य के लिए भी रक्तस्तापन औषधि का वर्णन आया हुआ है। रक्तस्तापन औषधि का यूज हम लोग कर सकते हैं और साथ में ओरली भी देख सकते हैं। एंड फॉर्मूला प्रैक्टिस अगर हम लोग देखेंगे कि ये मेडिसिन देने के बाद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कम होता है, तो दैट इज उसमें है दार्वेदिक वात, दारू हरिद्रा, और दारवी घन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज रसांजन जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस। तो एक सिंपल ड्रग भेषज रत्नावली में आया हुआ है, रसांजन, हरितकी एंड आमल की, ये तीन ही द्रव्य दिए हुए हैं। पोदर में हमारे जूनियर्स ने, डॉक्टर विष्णु भावने भी अभी इस लेक्चर में है, तो हमारे जूनियर्स ने, विष्णु भावने सर के कलीग ने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया हुआ है और लास्ट 15 ईयर्स से मैं ये ड्रग यूज कर रहा हूँ, रसांजन, हरितकी एंड आमल की। जो भी कोई पाइल्स के भी काम करता होगा तो उसके लिए भी ये ड्रग इंपॉर्टेंट है। कोई भी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, रसांजन, हरितकी एंड आमल की जो योग है, 1-1 ग्राम तीनों भी ड्रग्स एक साथ में 3 ग्राम का एक डोज अगर हम लोग लेंगे, दिन में 3 बार देंगे, तो हमारे एक्सपीरियंस से 3rd या 4th डोज तक ये ब्लीडिंग जो है वो काफी मात्रा में कम हो जाती है, काफी बार रुक भी जाती है। सो रसांजन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। दार्वैदिक वात में रसांजन है, सॉरी दारुहरिद्रा है, दारुहरिद्रा घन को ही रसांजन कहते हैं। अशोक वल्कल क्वात इज वन ऑफ द ड्रग, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं तो कोई भी फीमेल डिसऑर्डर्स में अशोकारिष्ट मोस्ट कॉमनली देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब रक्तपित्त या रक्तप्रदर जैसे चिकित्सा करनी हो तो अरिष्ट कम यूज में लाना चाहिए, तो वहां पे आप अशोक यूज कर सकते हो। अशोक छाल घनावटी मार्केट में अवेलेबल होता है, अशोटोन जैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो अशोक का क्वाथ, जो लोग अशोक चूर्ण ले सकते हैं उनको उसका क्वाथ बना के दीजिएगा, अशोकारिष्ट दे सकते हैं। सारीवाद्यासव इज अ ब्यूटीफुल ड्रग जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग है, साथ में बर्निंग सेंसेशन है, या डिसयूरिया है, या बर्निंग मिक्चुरेशन है विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो उसमें सारीवाद्यासव वर्क्स वंडर। सारीवाद्यासव एंड चंदनासव, ये 2 ड्रग्स जो है वो हम लोग जिसमें बर्निंग मिक्चुरेशन होगा या ब्लीडिंग होते समय बर्निंग सेंसेशन है, उसमें काफी अच्छा काम करता है। भूनिम्बादी ड्रग, अगेन द चॉइस ऑफ ड्रग इन पित्त डिसऑर्डर्स। स्पेसिफिकली ये जो सीजन है जिसमें आयुर्वेद के हिसाब से धरती को भी अम्लता प्राप्त हो गई है, तो उसके वजह से अम्ल गुण बढ़ने की वजह से जो शरीर में अम्ल पित्त जैसे व्याधि उत्पन्न होते हैं, उसमें भूनिम्बादी काढ़ा, स्पेशली में मेरे कंसल्टिंग में इन 4 महीनों के जो बारिश के सीजन है, रेनी सीजन में, जिनको पित्त डिसऑर्डर है उनको भूनिम्बादी काढ़ा जनरली यूज करता हूँ और पेशेंट इज हैप्पी विद दिस मेडिसिन। दुर्वासोरस अगेन नस्य के लिए भी और ओरल के लिए भी, एंड पलाश सिद्ध घृत का वर्णन आया हुआ है। सिंगल ड्रग अगर आप देना है तो रसांजन एंड मधु, मतलब हनी, तंडुलियम मूलक एंड हनी, रसांजन, लाक्षा, गोदंती चूर्ण, नागकेशर चूर्ण, ये सब कॉमन ड्रग्स है जो हम लोग यूज करते हैं, नागकेशर चूर्ण। और ये आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हो, जैसे रसांजन हरितकी अमल की हो गया, वैसे ही राल, नागकेशर, लोद्र, ये आप कॉम्बिनेशन दे सकते हो, या सिंगल ड्रग भी यूज कर सकते हो, इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि शुंठी चूर्ण इज द चॉइस ऑफ ड्रग अगेन बिकॉज वो तिक्तरसात्मक भी है और ग्राही भी है। ग्राही तस्य यथा शुंठी जीरकम गज पिप्पली, तो शुंठी, चीरक एंड गज पिप्पली, ये 3 ड्रग ग्राही गुणात्मक सबसे श्रेष्ठ ड्रग है। इसमें से पिप्पली और शुंठी और जीरक, ये तीनों भी ड्रग्स किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। सो वन कैन आस्क द पेशेंट टू टेक दैट ड्रग कि शुंठी चूर्ण आप ले लो, या खाने के बाद शुंठी चूर्ण ले लो, या खाने के पहले शुंठी, स्पेशली अपन वायु का जो है तो आपको खाने के पहले लेना चाहिए। काफी घरों में सुंठवड़ा करके हम लोग मराठी में बोलते हैं, तो सुंठवड़ा जिसमें खड़ी शक्कर होती है और शुंठी चूर्ण होता है, तो वो आप पेशेंट को एनकरेज कर सकते हो वो खाने के लिए, ताकि उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो है वो कम मात्रा में रहे। पोदार में जब हम लोग थे तब वासा गुड़जी स्वरस, कोई भी पेशेंट अगर रहेगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर का, स्पेशली जिसमें थ्रेटन्ड एबॉर्शंस जैसे केसेस होते हैं, उसमें वासा गुड़जी स्वरस जो मोस्ट कॉमनली दिया जाता है। लेकिन वासा और गुडुची दोनों भी फ्रेश लेने जरूरी है स्वरस के लिए, तो इसमें ज्यादा फायदा आपको दिखाई देगा।
Vasaguduchis is one of the drug. Then Balamul Churna एंड कुटजाष्टक चूर्ण जो कि संहिताओं में वर्णित है, खड़ी शक्कर के साथ कुटजाष्टक चूर्ण, अशोकवल्कल चूर्ण विद रसांजन, अशोकवल्कल या मार्केट में जिसको बोलते हैं अशोक छाल घनवटी है, तो अशोक छाल घनवटी या अशोक छाल चूर्ण रसांजन के साथ, अशोक छाल चूर्ण टंडुलोदक के साथ यानी चावल के धोवन के साथ हम लोग दे सकते हैं, कुटज का चूर्ण खड़ी शक्कर के साथ। एंड काफी बार ऐसे होता है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते समय भी हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि पुष्यानक चूर्ण इज द ड्रग विच शुड बी यूज फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। रक्त प्रदर में ये रक्त प्रदर अधिकार का द्रव्य है पुष्यानुक चूर्ण, जो कि हम लोग मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि श्वेत प्रदर में यूज करते हैं और रक्त प्रदर में बड़ी बड़ी दवाइयां लिख के देते हैं। तो पुष्यानुक चूर्ण अगर अच्छे क्वालिटी का रहेगा आपके पास तो पुष्यानुक चूर्ण इज अगेन स्पेशली उसका अधिकार ही रक्त प्रदर है। देन क्षीर प्रयोग आप करवा सकते हो, वासा घृत दे सकते हो। क्षीर प्रयोग में स्पेशली शुंठी सिद्ध क्षीर मतलब शुंठी सिद्ध दुग्ध, जैसे अभी गोल्डन मिल्क आया हुआ है कोरोना के लिए, हनी दूध में हरिद्रा मतलब टर्मरिक डाल के हल्दी डाल के दूध दिया जाए तो उसको हम लोग गोल्डन मिल्क बोल रहे हैं। वैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में दूध में आप शुंठी डाल के दे सकते हो, जिसको हम लोग शुंठी क्षीरपाक भी कह सकते हैं। तो वो शुंठी क्षीरपाक ये काफी अच्छा काम करता है। वासा घृत या अडुलसा घृत, अडुलसा स्वरस का नस्य करेंगे तो भी ब्लीडिंग जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। वासा घृत भी अवेलेबल है तो वासा घृत का भी हम लोग नस्य कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिस में हम लोग रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं जीरका व लेह, 10 ग्राम मॉर्निंग में, 10 ग्राम इवनिंग में बिफोर फूड अगर आप दोगे तो काफी रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। दाढ़ीमादि घृत ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स विद अनेमिया अगर है तो उसमें दाढ़ीमादि घृत काफी अच्छा काम करता है। कुष्मांडा व लेह ये स्पेशली टीनेज में काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि कुष्मांडो जो है बुद्धिवर्धक भी है। कुष्मांडो है जो है वो शीत है। काफी बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जनरल प्रैक्टिस में और कंसल्टिंग में भी कि जिनको ज्यादा मेडिसिन लेनी नहीं होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कुष्मांडा व लेह की जगह पे हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आप कुष्मांडा से बनी हुई चीज जो होती है, जिसको मिठाई पसंद है तो उसको आप बोल सकते हो कि पेठा खाओ। आगरे का जो पेठा होता है सफेद रंग का वो कुष्मांडा से बनता है, तो उसको लगेगा भी नहीं कि वो मेडिसिन खा रहा है। तो वो सुबह खाली पेट और शाम को भी खाना खाने से पहले आप खाने को देंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज गुड मेडिसिन। सो कुष्मांडा लेह जो है वो स्पेशली ब्लीडिंग पर वजाइनम हेवी मेंसेस है उसमें मेंटेनेंस के लिए मैं ज्यादा करके यूज करता हूँ कुष्मांडा लेह। शालमली घृत एंड शीतकल्याण घृत काफी फार्मेसी का मिलता है। शतावरी घृत जो कि इजीली अवेलेबल है। विदारादि घृत विशेषकर वातवर्धक जिसमें वातज रक्त प्रदर है, इसमें विदारादि घृत काफी अच्छा काम करेगा। एंड अगेन फिर से एक बार अगर हम लोग थियोरेटिकल जाएंगे देन जिसमें न्यूराइटिस है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है पर वजाइनम, साथ में टिंगलिंग नमनेस है या न्यूराइटिस जैसे हम लोग को कंप्लेंट्स लग रहे हैं, नर्वाइन कंप्लेंट्स है, इस कंडीशंस में तिक्तरस जो है वो तिक्तरसात्मक घृत, क्योंकि घृत जो है वो मज्जावस्त्रस पे अच्छे से काम करेगा, उसके साथ में तिक्तरस जो है वो पित्तिक डिसऑर्डर में काम करेगा। तो मज्जावस्त्रस पे काम करने के लिए और साथ में ब्लीडिंग डिसऑर्डर कम करने के लिए पंचतिक्त, महातिक्त ये 2 ड्रग्स है, या तिक्तकम घृतम जो केरलियन फार्मेसी के आता है वो काफी हद तक ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुष्मांडा है वो स्पेशली टीनेज में मैं यूज करता हूँ। दाढ़ीमादि घृत जो है वो पैथिक डिसऑर्डर्स विद ब्लीडिंग पीवी विद अनेमिया ऐसे कंडीशंस में काफी अच्छा काम करेगा। पैथिक दाह है तो उसमें शतावरी घृत आएगा। वातज रक्त प्रदर है तो उसमें विदारादि घृत। घृत की मात्रा अगर हम लोग देखें तो मोस्ट कॉमनली 10 ml ट्वाइस अ डे, यानी कि 2 टेबलस्पून फुल दिन में 2 बार या 3 बार आप दे सकते हो। महातिक्त घृत भी वैसे ही हम लोग यूज करेंगे। रक्तचंदन घृत के ऊपर काफी काम हो चुका है और स्पेशली रक्तार्श में हुआ है, तो रक्तार्श की चिकित्सा हम लोग रक्तपित्त में करने का अधिकार दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग रक्तचंदन घृत का इस्तेमाल रक्त प्रदर में करते हैं। एंड शतावरी तेल का पीछुधारण, शतावरी घृत का पीछुधारण मैरिड पेशेंट में या जिसका फैमिली कंप्लीट है, डिलीवरी हो चुकी है, ऐसे पेशेंट्स में शतावरी तेल का पीछुधारण हम लोग कर सकते हैं। शतावरी तेल एंड शतपुष्प तेल का बस्ती जो है
वो रक्त प्रदर में काफी हद तक अच्छा काम करता है। प्रिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो प्रदरांतक रस, बोलबद्ध रस, चंद्रकला रस, अगेन चंद्रकला रस जो है वो थ्रू आउट ईयर आप कभी भी, जिसको पैथिक डिसऑर्डर्स है, स्पेशली समर में ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि नहीं मुझे गर्मी सहन नहीं होती और उसकी वजह से पित्त की तकलीफ होती है, तो ऐसे कंडीशंस में आप ब्लाइंडली चंद्रकला रस दीजिए, पेशेंट को काफी हद तक आराम मिलता है। इसीलिए पैथिक डिसऑर्डर्स में जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा है, उसको मेंटेनेंस के लिए चंद्रकला रस एंड सूचशेखर रस इज अ ड्रग, इज अ चॉइस ऑफ ड्रग। ब्लीडिंग इमीडिएट, अभी एक्टिव ब्लीडिंग है तो उसमें प्रदरांतक रस, प्रदर रिपु रस और बोलबद्ध रस ये काफी अच्छा काम करता है। बोलबद्ध रस, बोल परपटी, प्रदर रिपु और प्रदरांतक रस जो एक्टिव ब्लीडिंग रहेगा, ऐसे कंडीशंस में हम लोग को देना है। मेंटेनेंस के लिए चंद्रकला रस एंड सूचशेखर रस 2 TDS डोज में हम लोग ये सभी दवाइयां दे सकते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आपको सिंगल ड्रग चिकित्सा जैसे मैंने बताया, रसांजन फर्स्ट ड्रग, लाक्षा चूर्ण, राल चूर्ण, आमलकी, हरितकी और इनके कॉम्बिनेशंस आप दे सकते हो। वासा चूर्ण की जगह पे स्पेशली वासा स्वरस इज द इम्पोर्टेंट ड्रग। नागकेशर चूर्ण जो कि हम लोग हर एक जगह पे ब्लीडिंग में यूज करते हैं, तो नागकेशर चूर्ण। बलामूल चूर्ण जो काफी कम जगह पे यूज है, लेकिन बलामूल चूर्ण के काफी रोल है, बिकॉज बला में प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स ज्यादा होते हैं। जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ी हुई रहती है मोस्ट कॉमनली, तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम लोग बला देंगे तो प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से एस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं और जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होता है। देन अशोक छाल चूर्ण, जिसको अशोक त्वक चूर्ण कहते हैं, तो उसकी घनवटी हम लोग यूज कर सकते हैं सिंगल ड्रग। कुटजा चूर्ण एंड काश्मीरी चूर्ण, गंभारी और शिवन जिसको हम लोग कहते हैं, तो हम लोग वो इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। पथ्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ है कि गोट मिल्क, जो कि बॉम्बे में आपको गोट मिल्क मिलना आसान नहीं है। तो अगला पथ्य मैं बताता हूँ आपको। यद अपथ्यम यद पथ्यम च रक्तपित्तेषु कीर्तितम, जो जो रक्तपित्त में पथ्य बताया गया है वह पथ्य फॉलो करना चाहिए। जो जो रक्तपित्त में अपथ्य है, मतलब उष्ण, तीक्ष्ण, क्षार, दधी ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जंगल रस का सेवन, उत्पलादिगण का सेवन, सतीन यूष, षष्टिकशाली जो कि मोस्ट कॉमन हम लोग पथ्य बताते हैं, वो करना चाहिए। स्पेशली जब हमारे पास कोई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसमें पैथिक डिसऑर्डर्स हो या ब्लीडिंग ज्यादा हो, तो ऐसे पेशेंट्स में क्षार पदार्थ बंद करने चाहिए। जैसे अगर पेशेंट्स को बताना चाहिए कि आचार और पापड़, जिसमें मराठी में हम लोग बोलते हैं कि खार रहता है, लोणच्याचा खार आणि पापड़ाचा खार, वो क्षार जो है वो नहीं खाना चाहिए। तो पापड़ और आचार तो कंपलसरी बंद। अभिसंधि पदार्थों में स्पेशली दही बंद। जो बेकरी की बनी चीजें है वो भी अभिसंधि होती है, जो कि फर्मेंटेड की जाती है, तो इसके लिए बेकरी की बनी चीजें बंद करनी चाहिए। तो ऐसे अगर हम लोग पथ्य बताएंगे जिसमें फर्मेंटेड चीजें बंद, इडली, मेदू वड़ा, डोसा जो कि फर्मेंटेशन से बनते हैं, बेकरी की चीजें जो कि फर्मेंटेशन से बनती है, दही, आचार, पापड़, ये हम लोग को पेशेंट का बंद करवाना चाहिए ताकि रिजल्ट्स काफी जल्दी से और काफी अच्छे से मिल सके। तो ये पथ्य है। अपथ्य में आप सभी जानते हैं कि ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा क्षार नहीं खाना चाहिए। पेशेंट्स बताते कि नहीं मैं ज्यादा सॉल्टेड नहीं खाता, लेकिन बिस्किट्स खाते हैं मोनेको के, तो वो सॉल्टेड बिस्किट्स, ये सब पेशेंट को कंसल्टिंग में पूछना पड़ता है कि आपको सॉल्टेड बिस्किट नहीं खाने हैं, आपको सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग को पथ्य और अपथ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पथ्य में अगर पेशेंट को दवाई नहीं खाना है तो हम लोग मेंटेनेंस के लिए, अगर उसको डायबिटीज नहीं है, देन वी कैन आस्क हर टू ईट पेठा, जो कि अवेलेबल हो सकता है मुंबई में भी, तो वो पेठा अगर अर्ली मॉर्निंग में वो ले सकते हैं तो काफी अच्छी बात है, राइट। देन दिस इज द आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू एलोपैथी management protocol is simple. So there is different management according to the age. Pubertal and adolescence में मेनोरेजिया रहेगा तो वो अलग है, रिप्रोडक्टिव एज में मेनोरेजिया रहेगा, then different protocol. So what is the protocol? First is hormone. You all know northestrone, metroxyprogesterone, dydrogesterone, contraceptive pills, OC pills में भी आप बायफेजिक भी दे सकते हो, यूनिफेजिक भी दे सकते हो, एंड
POP भी दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। एंड डेनेजोल, डेनेजोल इज एंड्रोजन, तो इसमें हम लोग को एस्ट्रोजन कम करने हैं, फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन कम करने हैं, और मेल स्पेसिफिक हार्मोन जो है एंड्रोजन बढ़ाने हैं। तो एंड्रोजन अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो डेनेजोल का जो डोज है हम लोग डेनेजोल अगर कंटिन्यू करेंगे तो दैट विल क्रिएट द कैस्ट्रेशन ऑफ मेंसेस, मेडिकल कैस्ट्रेशन ऑफ मेंसेस, जिसमें मेंसेस नहीं आएंगे, दैट इज अ साइड इफेक्ट एंड दैट इज अ ट्रीटमेंट ओनली। तो उसमें 3 महीने तक या 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आएंगे, बट इट हैज साइड इफेक्ट्स लाइक हिस्टुटिज्म होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, पेशेंट को वार्मनेस ज्यादा लगेगा, हॉट फ्लशेस रहेंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ डेनेजोल। सो डेनेजोल इज अगेन चॉइस। देन प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग आईयूसीडी, जैसे लियोनार्जेस्ट्रॉल का आईयूसीडी है वो दिया जा सकते हैं। मिफेप्रिस्टोन इज द ड्रग, GnRH analogs and desmopressin, ये हार्मोन्स यू हैव टू कंटिन्यू दिस हार्मोन्स फॉर 3 months, एटलीस्ट फॉर 3 months। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेदर द ब्लीडिंग PV दैट इज मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया इज करेक्टेड और नॉट। कभी भी नॉर्मल फिजियोलॉजी में जब ब्लीडिंग होता है, सो ब्लीडिंग के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 हार्मोन्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH एंड LH, एंड विद दैट PRL एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स अलग अलग फेज में अलग अलग लेवल पे रहते हैं, इसके पीक्स अलग अलग रहते हैं। मतलब काफ़ी कभी स्टार्ट में जो है वो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ते जाएगा, देन वो ड्रॉप होगा और LH लेवल बढ़ेगा, सर्ज होगा। तो ये सभी हार्मोन्स जो है वो अलग अलग दिनों में अलग अलग क्वांटिटी में रहते हैं। लेकिन फॉर ब्लीडिंग शुड बी ऑकर, दे ऑल द हार्मोन शुड बी इन वन थ्रेशोल्ड, दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग थ्रेशोल्ड। ये चारों हार्मोन्स एक थ्रेशोल्ड में आने चाहिए। इसीलिए जब हम लोग प्रोजेस्टेरॉन देते हैं या एंड्रोजेंस देते हैं, तो एंड्रोजेंस देने के बाद एंड जो हार्मोन है वो ऊपर की तरफ रहेंगे, तो वो ब्लीडिंग थ्रेशोल्ड में नहीं होगा, और वो बंद करने के बाद धीरे धीरे वो हार्मोन जो है वो एक हार्मोन जो है वो ब्लीडिंग थ्रेशोल्ड में आ जाएगा, उसकी वजह से वो साइक्लिक ब्लीडिंग होगा और वो मेमोरी में जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को 3 months के लिए कंटिन्यूसली ये देना है। अगर एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन ज्यादा है, हाइपरप्लेजिया हो गए, तो वहां पे हम लोग को एस्ट्रोजन लेवल कम करने के लिए वहां पे एंड्रोजेंस देने लाइक डायनेजोल। देन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ज्यादा होने की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होता है। देन काफी बार हम लोग जनरल प्रैक्टिस में भी करते हैं कि टैबलेट पॉज या इंजेक्शन पॉज दे देते हैं। सो दैट इज द मेडिसिन ओनली, उसमें कोई बात अलग बात नहीं है कि ट्रानेक्सामिक एसिड इज द मेडिसिन, बट यू शुड गिव मेफेनेमिक एसिड अलॉन्ग विद ट्रानेक्सामिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर है, और एंटीफिब्रिलेटिक जो ट्रानेक्सामिक एसिड है जो कि कैपिलरी ब्लीडिंग को स्टॉप करने वाला है, उसके साथ अगर मेफेनेमिक एसिड अगर देंगे तो ये ज्यादा अच्छे से काम करता है, पेन भी कम होगा एंड ब्लीडिंग इमीडिएटली स्टॉप करने में मदद करेगा। सो PG synthesis inhibitors, mefenamic acid and tranexamic acid. So next time whenever you think of pause, you should give pause MF। ये मैं एक ही ब्रांड नेम बता रहा हूँ, there are a number of brands। तो ट्रानेक्सामिक एसिड के बाद साथ में आपको मेफेनेमिक एसिड देना है। एंड गोनेडोट्रोपिन्स के जो नेजल स्प्रे अवेलेबल है, लेट्रोज के है, सिल्बेस्ट्रॉल के नेजल स्प्रे अवेलेबल है जो कि कंसल्टेंट्स को देने चाहिए। सो यू शुड थिंक ऑफ दैट ऑल्सो। एंड देन देयर इज सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है और वो मेडिसिन से कम नहीं हो रहा है, देन यू शुड गो फॉर यूट्राइन क्यूरेटेज। यूट्राइन क्यूरेटेज करने के बाद भी देयर इज रिकरेंट मेनोमेट्रोरेजिया, देन देयर आर सम टेक्निक्स अवेलेबल कॉल्ड एज एंडोमेट्रियल एब्लेशन, जो कि एंडोमेट्रियम के लेयर्स को जला देते हैं। एंड देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एब्लेशन, दैट इज हॉट वाटर एब्लेशन, जिसमें हॉट सलाइन छोड़ी जाती है जो एंडोमेट्रियम को जला देती है। देन देयर इज क्रायो एब्लेशन। ऐसे अलग अलग एब्लेशंस के टेक्निक है जो कि एंडोमेट्रियम को जला देगा। जैसे काम करेगा एंड्रोजेंस, एडेनेथोल जैसे काम करता है, वो भी एंडोमेट्रियम को जला देता है मेडिसिनली। ये हम लोग डायरेक्टली सर्जिकल जला देते हैं। देन इंटरनल इलियक लाइगेशन, ये सब करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो यूटर्न आर्टरी जिसमें सप्लाई करता है इंटरनल इलियक का ब्रांच है, तो इंटरनल इलियक को लाइगेशन किया जाता है। या फिर directly if the family is completed and patient is indicated for hysterectomy, then go for hysterectomy. So first line of treatment is hormones, and then mefenamic acid, tranexamic acid, and then surgical management. So there are some few clinical researches what we have done with different companies.
And if there is any question, feel free to ask on this mail. This is my mail ID, drmangeshpatil21@gmail.com. And I will take this opportunity to thank the organizer. Thank you, NEMA team, to invite me as a speaker. And thanks for patient listening. Thank you. Thank you very much, sir. Sir, do I stop the sharing from your side, or I stop? Yeah, you can stop, sir. Thank you, Dr. Mangesh Patil, sir. A very wonderful presentation. Though it's not related to my specialty, but I can see that you have covered two integrated lecture, actually, integrated practice lecture. You have covered all the modern aspects of this disease, PV bleeding. Also, you have covered the Ayurvedic aspects also. In not only physiologically, you have elaborated, also you have given the medical or medicine aspects also. You have covered the medicine in Ayurvedic aspects, and also at the same time you have covered the allopathic aspects. Today we have Dr. Vishnu Bhavne sir as our expert panelist. I request Dr. Vishnu sir to please elaborate the subject. Thank you, Girish Daga sir. First of all, I would say that it was very informative lecture. In true sense, you said that it's an integrated lecture. It was integrated lecture by Dr. Mangesh Patil sir. He is my senior and he always guide me. He always treat me like a younger brother. Since 2004, I'm always taking his guidance. So today's lecture was really a very nice lecture by Dr. Mangesh Patil sir. I can't say anything about his lecture. And I'm very much thankful to the Girish Daga sir participant for that's it, sir. You can take the Mangesh sir. Can you see the chat box? Yes, sir. Yes, sir. I think we will take the questions one by one questions. Yes. I think the first question is, in adolescent bleeding, Durva Soros Nastya is useful or not? Yes, of course, Durva Soros Nastya is useful in adolescent bleeding. We have done so many patients with the Durva Soros Nastya. So you can apply Durva Soros Nastya in your general practice also, along with some internal medicines which we have discussed in this lecture. You can go with this Durva Soros Nastya. And second question is, please guide sir, a patient have spotting 5 to 10 days before periods. What is the diagnosis? And her USG all hormonal profile is normal except prolactin 56. After giving Crohn Churna, her prolactin is 9 and symptoms are same. Please guide. And this is, I think, from Dr. Jaskirat. Yeah. She is from Punjab and she is quite studious. She is also a lecturer. I have consulted for this patient regarding hyperprolactinemia, and I have suggested to go with Cronje Churna, and you can see the results of Cronje Churna. That is, prolactin level was 56, and after Cronje Churna it reduces to 9. That is becomes normal, but there is spotting PV for 5 to 10 days before periods. For that, you should also start some medicines with Cronje Churna. You can start with Suchekar or Suvarna Suchekar. If you're going for Suvarna Suchekar, then you have to give 125 milligram twice a day. If normal Suchekar, then you can give 250 milligram thrice a day. Kushmandava is one of the drug you can use. Then Rasanjan Haritaki and Amalki is the combination of the drug, 1 gram each. That is 3 grams in the morning, 3 grams in the afternoon, and 3 grams in the evening before the food. And that too after the 14 days of the menses. That is in the luteal phase you can start. And this premenstrual spotting is because of the hormonal bleeding only, because one must say that there is hypothesis like the blood test which shows normal hormonal levels is from the blood which is derived from the or the withdrawal from the
periphery, but local hormonal level might be different, which causing this type of irregularities or premenstrual bleeding or the premenstrual spotting. So you can start with Ashok Chal Churna or Ashok Chal Quat or Kushmanda Valeha or Sud Shikar. That is the drugs you can give to the patients. Basically, it should be in Rutuvetita Kal, that is after the 14th day or 15th day of menses, or premenstrual for